from Patna. We both are traveling from here for the next 2 years to 5 continents across the world. And this is our first enlightenment experience program. And तो श्री कृष्णा जी कह रहे हैं कि श्री प्रीता जी और श्री कृष्णा जी एकम एनलाइटनमेंट मुक्ति का अनुभव नामक एक पहला कार्यक्रम पटना में शुरू कर रहे हैं और इसके बाद 2 सालों के लिए 5 महाद्वीपों में यही कार्यक्रम होगा, जिसकी शुरुआत आज पटना से हो रहा है, पाटलिपुत्र से। the reason we selected Patna as our place is because, as every one of you know, that Patliputra is a very sacred space. It's a very sacred place for entire humanity. And Buddha was born here, the enlightened being. Buddha started his work from here. He attained Nirvana here in Bodh Gaya. And we both are speaking to the world about enlightenment. And we both felt that starting our work the most sense to expand this message of enlightenment, to expand this message of mukti to people, makes most sense if we can do it from here. Also, Bihar is a place for a lot of great beings, the great emperors, both Chandragupta Maurya, Ashoka are from here, the great mathematician Aryabhatta is from here, the great political genius Chanakya is from here. So this land has something very, very special in it. If you look at history, a lot of great, wonderful human beings are born and they were here. But of course the jewel, the crown jewel of Bihar is the Buddha, who came and got his Nirvana, which is found in Bodh Gaya, which is 120 kilometers from here. And Buddha stands for enlightenment throughout the world. He stands for enlightenment, he stands for inner peace, he stands for inner compassion, he stands for unity. So both of us decided that if we have to start experience enlightenment for the world, let us start from Patna. And both of us are very, very happy with the kind of response we are seeing from the people here, with the kind of enthusiasm that people have shown for this program. श्री कृष्णा जी आगे जाकर ये भी बता रहे हैं कि ये पाटलिपुत्र नामक या पटना नामक स्थान पर ही क्यों हमने ये कार्यक्रम चुना है। ये इसलिए क्योंकि जैसे हम सभी जानते हैं कि पाटलिपुत्र कितना एक पवित्र भूमि है और यहाँ पर बुद्धदेव जो हैं अपने इस महान कार्य को प्रारंभ किए थे, निर्वाणा स्थिति को हासिल किए थे, इस अवस्था में वो प्रवेश किए थे। और इसीलिए जब भी श्री प्रीता जी, कृष्णा जी इस संकल्प को आगे ले जाना चाहते हैं, उनकी ये बहुत इच्छा थी कि ये यहाँ से ही शुरू हो, इस पवित्र भूमि से शुरू हो। और ये बहुत मायने भी रखता है अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ से ये और विस्तृत होना है पूरे देश भर में, दुनिया भर में। फिर आगे जाकर श्री कृष्णा जी ये भी कह रहे हैं कि यदि हम बिहार के ऐतिहासिक कहानी को अगर देखेंगे, ये वो भूमि है जहाँ पर बहुत सारे महान संतों और ज्ञानियों का भी जन्म हुआ है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे। जीवन मुक्त मानव कैसे बनना, ऐसे में जो लोग बड़ी जिंदगी परेशान रहते हैं, काफ़ी सारे काम है, लेकिन वो ऐसे खुशी कैसे पाए, क्योंकि खुश रहने का रहस्य आजकल किसी को पता नहीं होता। लोग परेशान है, फैमिली से परेशान है, काम से परेशान है, ऐसे में कैसे हम लोग बेहतर जीवन जी सकते हैं खुशी के साथ, काम भी बेहतर हो और अपने आत्मा को भी खुश रख सकते हैं। Yes. See, today our understanding fundamentally is that if we have to become happy, if we have to become joyful, we have to become very gurus to take you into the inner journey so that you can become free of your suffering. Because where do you experience the anger? You experience the anger within, fear within, greed within, depression, sadness, everything is happening here. But without addressing here, we are constantly trying to address that through our job, through our wealth, through our relationships, through everything external. There is no answer at all. And that is why how much ever we are trying hard, we are yet not happy.
But if we can move internal and have the right wisdom, whatever your external challenges are, whatever your problems are, you can yet be happy. And from that joyful state, you can address all the challenges. That is what we both want to do. We want to teach people how can you address your challenges and your problems from a joyful state rather than from anger, sadness or fear. That's the whole work. एक बहुत बड़ा सेक्टर है साउथ इंडिया में और उनका विजन है एनलाइटमेंट। सो एकम है वर्ल्ड सेंटर फॉर एनलाइटमेंट। एकम साउथ इंडिया में लार्जेस्ट पिलरलेस हॉल है, मार्बल से बना हुआ है और उसके अंदर 8,000 लोग मेडिटेट कर सकते हैं। जब 8,000 लोग एक साथ आकर मिलकर मेडिटेट करेंगे एनलाइटमेंट के लिए, तो वो ह्यूमैनिटी कॉन्शियसनेस को इम्पैक्ट करेगा। हमारा जो विज़न है और एकम का विज़न है वो है ह्यूमैनिटी को मुक्ति देना। ये हो सकता है जब 0.001% का ह्यूमैनिटी को मुक्ति आ जाएगा। वो है अब आज का पॉपुलेशन की तरफ से 79,000 पीपल। अगर एनलाइटमेंट हो जाएगा तो वो ह्यूमैनिटी का कॉन्शियसनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। पहले आपका परिवार को इम्पैक्ट कर सकता है, आपका काम जो आप काम कर रहे हैं वहाँ इम्पैक्ट कर सकते हैं, आपको दोस्तों को, और वहाँ से आपका स्टेट, नेशन और वर्ल्ड को। हम सोच रहे हैं कि हम सब सेपरेट हैं, हमारा बॉडी और हमारा फीलिंग्स जब सेपरेट है, मगर हम एक्चुअल रियलिटी में सेपरेट नहीं है। आज का साइंस भी यही मान रहा है कि हम सब एक है, हम कनेक्टेड है, मैटर में, एनर्जी में, कॉन्शियसनेस में कनेक्टेड है हम। जो आप फील करेंगे आपका फैमिली फील कर सकता है, आप अगर दूर में होंगे भी तो। क्योंकि आप अगर सोच लीजिए कि आप 2000 किलोमीटर दूर में हैं और आप आपके बीवी को फ़ोन कर रहे हैं, आपका वॉइस सुनकर वो फील कर सकता है कि अगर आप खुश हैं या दुख है। आपको देखना नहीं चाहिए, तो आप कनेक्टेड हैं, हम सब कनेक्टेड हैं। तो अगर एक इंडिविजुअल एनलाइटनमेंट और मुक्ति के रास्ते में जाएगा तो उसका पावर बहुत बड़ा है। सो हमारा विज़न है और एकम का विज़न है कि 0.001% का ह्यूमैनिटी का पॉपुलेशन अगर मुक्ति हो जाएंगे तो वो वर्ल्ड का प्रॉब्लम्स को कम करेगा। आज का डिप्रेशन जो है वो कम हो जाएगा, आज का डिवीज़न जो है वो कम हो जाएगा, वॉर्स नहीं होंगे, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कम होगा। जो भी डिविजन्स हो रहा है डिफरेंट लेवल्स में, पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल या सोशल डिवीजन या रिलीजियस, वो सब कम हो जाएगा। पूरा का पूरा तो प्रॉब्लम्स नहीं चल जाएगा, मगर सब कुछ कम हो जाएगा और मनुष्य वो खुश हो जाएगा। सर इसी संदर्भ में आप कल प्रोग्राम कर रहे हैं सर, इसकी शुरुआत आपने कहाँ से रखी थी और कहाँ से होते होते आप बिहार को अब आए हैं सर? हम एकम एनलाइटमेंट एक्सपीरियंस प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, कल यहाँ पटना में हो रहा है। इसका मेन विज़न है कि जो भी कल आएगा प्रोग्राम है वो फर्स्ट एनलाइटमेंट और मुक्ति क्या है उसका पूरा अंडरस्टैंडिंग। कैसे आएंगे लोग? कैसे आएंगे लोग? आप सब हेल्प करेंगे। हमारा तो यहाँ बेस है, हमारा सेवक से, हमारा वॉलंटियर से, डिवोटी से, वो सब काम कर रहे हैं, हमारा दासा जी से। सो सब लोग काम कर रहे हैं और अवेयरनेस स्प्रेड किया है लास्ट 6 वीक्स। तो मुक्ति अनुभव क्या है? क्या लोग समझे मुक्ति अनुभव से? कैसी मुक्ति? मुक्ति अनुभव ये है कि वो बहुत बड़ा शांत हो सकता है और फीलिंग ऑफ वननेस हो सकता है, फीलिंग ऑफ आनंद हो सकता है, फीलिंग ऑफ विटनेस हो सकता है, जहाँ आप जजमेंट्स नहीं है मगर पूरा दुनिया को विटनेस कर रहे हैं आप। लॉट ऑफ जजमेंट्स है, कमेंट्री है माइंड में। और सेपरेशन सीजेस, ये सेपरेट हो रहे हैं, वो सेपरेशन बहुत थिन होगा, वेरी कनेक्टेड फील करेंगे, वननेस फील करेंगे। साक्षी बाबा का मार्ग मुक्ति के लिए अन्य सनातन ग्रंथों में भी बताया गया है। श्रीमद् भागवत गीता में भी कुछ बातें कही गई।
आपका आधार क्या होगा या आपका सेल्फ का एक्सपीरियंस लोगों को आप बताएंगे? हमारा ये मुक्ति का पाथ है एकम पद, और इसमें मुख्य प्रोग्राम है एकम तपस। वो 42 डेज़ का प्रोग्राम है, एकम सेंटर है जहाँ लोग आ रहे हैं। वो 14 डेज़ और 14 डेज़ तीन डिवीज़न से किया है हमने। जब आप आएंगे उस प्रोग्राम को, वहाँ आप जो भी कारण है आपका सफरिंग दुख एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो भी कारण है उस दुख के लिए, उस कारण आपसे दूर हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। दुखों के कारण गीता में ही बताया गया है, माया जाल है सब। माया से मुक्ति मिलती है तो दुखों से मुक्ति मिलती है, आत्म की ओर भी हम चले जाते हैं, शांति भी मिलती है। तो क्या हमारा कहने का ये मतलब था कि आपके ज्ञान जो देंगे लोगों को बताएंगे, इसका आधार आपका सेल्फ है या कि कोई हमारे Are you following some other religious scripture based upon which you're teaching Sakrami, or are you teaching dependent on your experience? जो भी हम टीच कर रहे हैं वो पूरा मेरा और प्रीता जी का लाइफ एक्सपीरियंस आ रहा है। मेरा पहला स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ था जब मैं 11 ईयर्स का, आज मैं 43। सो हमारा दोनों का लाइफ एक्सपीरियंस और हमारा दोनों का स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस और हमारा दोनों का स्पिरिचुअल विजडम से आ रहा है। डेफिनेटली फ्लेवर ऑफ सर्टन रिलीजन्स है, क्योंकि हमारा रिलीजन्स में, हिंदुज़म में या बुद्धिज़्म में या अदर रिलीजन्स में बहुत ब्यूटीफुल टीचिंग्स हैं, मगर वो टीचिंग्स को हम यूज़ नहीं करते, वो अलग है। जो हम टीच कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट सेम हो सकता है। अगर आप वननेस का कॉन्सेप्ट लेंगे तो वो तो है मेनी रिलीजन्स में, मेनी फिलोसॉफिकल थॉट्स में, मगर वो रास्ता अलग है। वहाँ जाने का रास्ता बहुत अलग है। कॉन्सेप्ट तो सेम, क्योंकि वननेस इज अल्टीमेट, और कोई नया कॉन्सेप्ट तो नहीं लेकर आ नहीं सकता। वही सच, वो सच तो बेस वहीं से शुरू हो, बेस वहीं से। वो एक वनस आइडिया नहीं, वनस एक्सपीरियंस होता है। डिविजन चला जाता है, सेपरेशन चला जाता है, इग्नोरेंस चला जाता है, सफरिंग चला जाता है, द इनर कॉन्फ्लिक्ट, दुख सब चला जाता है। एक एक्सपीरियंस, एक अनुभूति हो जाती है।